Hello, welcome to Aapki Khabar. And today's our session is going to be very interesting. And as the viewers of Aapki Khabar knows very well, Aapki Khabar and UP Wiki HR Council brings the session regarding HR. And today our guest is Barkha Bhatnagar. She is in the field of corporate for the last 21 year, 27 years, sorry, 21 uh, years. 21. 21 years. And now we are moving to Mitu Dantre as the viewers, very well known face for the Aapki Khabar viewers. Mitu Dantre is the moderator of this program, and today we are going to start now. Mitu ji, stage is yours now, please. Thank you, Rajiv ji. Good evening, everyone, and wishing you all a very happy belated Holi. I welcome Barkha. Hi, Barkha. Welcome on board with the HR Impact. Hi, It is Neetu. a combined effort. Thank you so much. Yeah, thank you. So it is a combined effort between Aapki Khabar and Wiki UPHR, where we are trying to introduce the HR concepts and current trends and topics related to HR, and trying to cater to all the fraternity people who are interested to even pursue the human resource for the futuristic perspectives, and the people who are always already in the field. So today our guest speaker is Ms. Barka Bhatnagar. She is a seasoned professional with 2 decades of experience, as Rajiv ji told. She's a career coach. She is an HR professional who's leading the L&D teams and currently is serving as one of the organizations as head L&D. She is somebody who's also had a good hands-on experience on return on training investments, and she's managed end-to-end learning and development for organizations and also cater to the employee engagement initiatives, etc. So I welcome you, Barka. Very well, warm welcome to you on our board. And today I would like you to start, since our topic for the day is career reboot, especially for women who want to come back to the workforce. So I would like people to know your personal story and your way forward through it. Sure. Thank you so much, Neetu, and thank you so much, Rajiv ji, to give me this honor. I'm humbled and बहुत अच्छा मंच है. आप दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे इस सेशन के द्वारा अगर महिलाओं को कुछ मदद मिलती है, कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ गाइडेंस मिलती है, I'll be more than happy for doing this. एंड मेरा नाम बरखा भटनागर है. मैं एमपी को बिलोंग करती हूँ. इंदौर में मेरी पूरी एजुकेशन हुई. मैंने एमबीए ह्यूमन रिसोर्स IIM इंदौर से किया 21 years बैक एंड स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट करियर आफ्टर मैरिज. एक कॉम्प्रोमाइज तो तभी किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रिजाइन की थी शादी के लिए एट द एज ऑफ 23 बिकॉज मैं IIM इंदौर में ही एकेडमिक रिसर्च एसोसिएट थी. पीएचडी शुरू कर दी थी. तो बस एक ड्रीम था कि पीएचडी खत्म करके यही प्रोफेसर बन जाना है. बट आपके ड्रीम और फादर के ड्रीम कुछ अलग होते हैं. सो ही वाज अ क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर. सो ही सेड कि बहुत अरमान है तुम्हारी शादी का, पहली बार लोन लेंगे और 8 साल के में तुम्हारा लोन चुका के फिर रिटायरमेंट फ्री चाहिए, मतलब लोन फ्री रिटायरमेंट चाहिए. तो लड़कियां तो इमोशनली अटैच होती ही हैं. सो आई रिजाइंड my central government job at the age of 23 for marriage. That was first compromise. Being a woman, being a lady, career wise. Then I moved to Surat where my husband was working with SR Power. I had my first baby within first year of wedding, and after that I got a wonderful opportunity to work with SR, the corporate learning center of SR Group. तो वो 9,000 एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग देखते थे उस समय. तो SR पावर, SR शिपिंग, SR स्टील, इवन SR ऑयल जाम हो गए. तो अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ. ट्रेनर्स उस समय में मिस्टर शिव खेरा जो थे, उनका कोई असिस्टेंट नहीं होता था 20 साल पहले. मैंने उनसे रेट्स नेगोशिएट किए हैं लीडरशिप टीम के सेशंस के लिए. हम मिस्टर शिव खेरा को बुलाते थे सेशंस के लिए उस 20 साल पहले. तो वहां से जो सीखने मिला, एमिनेंट स्पीकर्स को सुनने मिला और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, और फिर एक थोड़ा कीड़ा भी
डेवलप हो गया कि यार खुद भी ट्रेनर हो सकते हैं, अभी 4-5 साल से सुन रहे हैं। तो आई डेवलप छोटे छोटे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर जूनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट एंड आई नेम देम पर्सनालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम, पेप। क्योंकि हम कैंपस रिक्रूटमेंट में डिप्लोमा इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर्स और मैनेजमेंट ट्रेनीज ले तो आते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक, पर कई बार उनको राजीव जी और मीतू ग्रूमिंग चाहिए होती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। सपोज वो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में है तो कस्टमर से डील करना है, क्लाइंट से डील करना है, जब बात करना ही नहीं आएगा तो कैसे डील, टेक्निकल स्किल तो बाद में आएगी। तो Correct. my module was super hit. I had trained around 6,000 employees for SR Group through my modules. मतलब काम भी करती थी L&D में, पर ट्रेनिंग्स भी करती थी एज अ ट्रेनर. Then in 2010 we moved to Mumbai. This is again a compromise in a women's career कि husband को job change चाहिए था. वो L&T सूरत में थे. He moved So to luckily Mumbai. So I had to resign and move to Mumbai. This was the second compromise I did as a woman, as a lady at the peak of my career. उस time. Then after moving to Mumbai, I worked for 2 years, but Mumbai life kills, I tell you. You know, it's very, very difficult जब आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं और छोटा बच्चा घर पे रो रहा होता है ना, वो माँ का दिल क्या होता है वो माँ ही जानती है. गिल्ट फीलिंग जो है वो करियर के ऊपर आ जाती है. तो आई yeah. क्विट after yes, I was working with the Swiss MNC, Sulzer Pumps. Again, I was at the peak of my career. I was Deputy General Manager HR. और मेरे बॉस जो थे HR हेड, वो 2 साल में रिटायर हो रहे. At a very Okay. young age of 33-34, I was about to become All India HR head for that Swiss MNC. But वहाँ पे भी मैंने छोड़ा. I resigned. देखिए, it's very very important to understand. बहुत सारी माएँ करती हैं, बट वो किस सर्कमस्टांसेस में करती हैं, यू आर नोबडी टू कमेंट. उनके क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, हस्बैंड की सैलरी कम ज्यादा कितनी है, पेरेंट्स का कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, वो क्रच में क्यों छोड़ती है, वो बाई पे बच्चे को क्यों छोड़ती है, वो उनका कॉल है. यू आर नोबडी टू कमेंट. मुझे वो पसंद नहीं था. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हस्बैंड का सैलरी अच्छा था, तो आई कुड टेक दीज स्टेप्स. And but resign करके भी I didn't give up. I registered my proprietorship, Kalash Consulting. Kalash is I have named it repository of knowledge. So 7-8 years I started working as a freelancer. COVID times में strongly hit हुई मेरी proprietorship because companies जब employees को ही निकाल रही है, downsize कर रही है, मुझे क्या काम दे. आउटसोर्सिंग बंद हो गया, रिक्रूटमेंट का भी काम मिलना बंद हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया. Then I did international diploma in career counseling and guidance from University of California. So since last 4 years, you can say now, I have given career guidance and counseling not only for school students, college students, but to professionals also. Because I have handled professionals in 20. वो कहाँ लैक करते हैं, कहाँ इंटरव्यू में मात खाते हैं, इवन ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, उनका रिज्यूमे बिल्डिंग. When they go to naukri.com, they pay 5,000 and get the resume built. But that is not the authentic thing. So I help professionals in making very, very crisp one-page CV. क्योंकि मुझे, मैं राजीव सर और मीतू जी, मैं टेबल के दोनों साइड बैठती हूँ. इधर रिक्रूटर भी बैठी हूँ 20 साल में, और इधर CV कैसे बनाना है वो भी अब मैं कर रही हूँ 4 साल से. तो कहाँ आपका CV डस्टबिन में चला जाएगा या कहाँ सिलेक्ट हो जाएगा मुझे पता है. So amazing experience, I can say. One thing which I didn't give up was my zest, my zeal, my vigor. मैंने चॉकलेट मेकिंग भी सीखा. मैंने चॉकलेट भी हजार चॉकलेट के ऑर्डर्स बनाए. मैंने अपने जो एक होता है ना फ्रूटफुल एंगेजमेंट को नीचे नहीं, क्योंकि इफ यू गो इन डिप्रेशन, इफ यू थिंक टू मच कि मेरा तो करियर खराब हो गया, सो यू नो यू कम डाउन इन लाइफ. So don't give up. And secondly, tremendous support I got from 5 men in my life: my dad, my brother, my husband, my father-in-law, and now my son who is doing IIT engineering first. That's So a very interesting journey. जैसे बोलते हैं कि हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, मैं बोलती हूँ हर सक्सेसफुल महिला के पीछे कम से कम 5 पुरुषों का हाथ चाहिए.
Very well said, very well said. No, actually, आपकी अपनी personal story, it's quite an interesting move from one place to another. And obviously, it shows कि एक lady, if you are a family person and you have your prioritizations, तो किस तरीके से always a woman has to take a back seat, and that is also not a something that she is doing under pressure always. She is sometimes making it her priority to prioritize the family first and then take life as it comes and then And deal with it it is and it is expand it. it is my life. I own it and I'm happy about it. अभी अगर आपके नेबर्स बोलते हैं कि तुम दोनों वर्किंग हो, तुमने फुल टाइम बाई क्यों नहीं रखी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी झाड़ू पोछे वाली बाई अपने बच्चे को कंप्यूटर कोर्स कराती है, आगे वो बच्चा घर में काम नहीं करेगा, तो मुझे अपने बच्चों को डस्टिंग सिखाना है, एक्वागार्ड चला के पानी भरना सिखाना है. Who are you to tell me how should I, why should I not keep full time? अगर मैं एक साल से वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, मैं उठ के सब्जी भी छौंक लेती हूँ, मैं अपनी बेटी के संग अनुपमा भी देख लेती हूँ एक एपिसोड, ब्लॉग उसका. सौरभ जोशी बड़ा टीनेजर्स को सौरभ जोशी ब्लॉगर नंबर 1 है, तो चलो उसको ट्यूशन जाने के पहले एक सौरभ जोशी उसके साथ देखती हूँ. This is my family, my home, my decision, and I don't allow people to interfere. No, that is the only, if you are focused, इससे यही सीख सकते हैं कि when you are focused at what you want, then you always make a path for yourself, and irrespective कि आपके आसपास का माहौल कैसा है या आप जानते हो कि आप उस माहौल को बेस्ट कैसे डील करोगे, and accordingly you should put your foot forward and take things up ahead as a challenge. So पहले क्वेश्चन में आपने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया, बिकॉज आई वाज थिंकिंग टू आस्क you what's your personal journey, and second would have been what are the general challenges that a lady has to face in totality when it comes to career building, or rather when she is trying to come back to the place from where she left. So just jot it down once for me more, that what exactly are the challenges that women employee face as they have to return to the mainstream and they are juggling between the family as well as profession, but हाँ अब उनके profession की तरफ उनका जो prioritization है has increased a little more compared to previous situations. General challenges जैसे कि आपने अभी बोले भी. Sure. Right. मीतू, सबसे नंबर 1 चैलेंज तो जो होता है दैट इज द जेंडर पे गैप. वंस यू रीजॉइन द वर्कफोर्स, तो जो आपके साथ पर कोलीग्स थे, नॉट इवन द मेल कोलीग्स, जो आपकी फीमेल कोलीग्स थी ना, वो भी सीटीसी में बहुत आगे निकल गई आप. तो ये एक True. बहुत बड़ा नंबर 1 चैलेंज होता है, पे गैप, फीमेल और मेल इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. तो वहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. Second time, careers are not destined, but they are created. If you are very lucky out of the one, it's fine कि आपको आसमान से झोली में मनचाही पोजीशन, मनचाही जॉब मिल गई 5 साल के बाद. बट सेकेंड टाइम जो है आपको क्रिएट करना पड़ता है अपने लिए जॉब. तो उसमें नंबर 1 चैलेंज आता है कि आपको पे में वो लोग कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नेगोशिएट करेंगे. तो एंट्री के लिए, once you want to get into the mainstream of corporate, my advice would be go for the compromise. क्योंकि आप capable थे और आप हमेशा लाइफ में capable रहोगे, right? Just it was circumstantial कि आपकी शादी हुई या बेबी हुआ या आपके हस्बैंड ने जॉब चेंज किया, ट्रांसफर हुआ, या एल्डरली, आई मीन टू एन एक्सटेंट सास ससुर की सेवा के लिए भी लड़कियां जॉब छोड़ती हैं. वो पॉइंट तो कभी उठ के ही नहीं आता है. नोबडी टॉक्स अबाउट दैट, क्योंकि वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की नहीं होती है, वो बहू की हो जाती है. हस्बैंड सिर्फ पैसा खर्च करता है कि फोर्टिस में चले जाना और सारे टेस्ट करवा लेना. लेके कौन जाएगा आपके माँ बाप को? बहू. उनको तीमारदार, आप ठीक है उनके लिए एक मेड लगा सकते हो, बट टाइम से खाना मिल रहा है कि नहीं, दवाई खा रहे हैं कि नहीं, आपके माँ बाप, वो भी आपकी वाइफ टेक केयर कर रही है, अपना करियर सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट? तो ये एक पॉइंट हम मिस ही कर जाते हैं बिल्कुल जब हम करियर ब्रेक की बात करते हैं. तो पे में आपको अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, बट इफ द कंपनी इज गुड, इफ द रोल इज गुड, इफ अपॉर्चुनिटी इज गुड, you should go ahead, क्योंकि you will prove your mettle. It's
जस्ट द मैटर ऑफ टाइम डील उसको बोलते हैं। सेकेंडली जो एक चैलेंज आता है वो है कि अभी भी इंडिया में, यू वोंट बिलीव, अगर हम डेली वेज बाय लेबर लॉ भी अगर हम जाएं तो डेली वेज वर्कर में भी जो मेल वर्कर है उसको 264 रुपए और फीमेल वर्कर को 204 रुपए, मतलब उसमें भी 40-50 रुपए का डिफरेंस है उस लेवल पे इंडिया में। तो आप डेली वेज में भी हमारा लॉ जो है वो मेल्स को प्रोटेक्ट करता है या ज्यादा पे करता है। अगर हम कॉर्पोरेट्स में बात करें तो जो एक लिंक्डइन का सर्वे हुआ था 2016 में, मेल professionals in the middle management get 22% more salary than female counterpart. तो आप भले करियर ब्रेक लो ना लो, आप प्रोफेशन में रहते हुए भी 22% लो चलते हो on an average. When we talk about surveys, it is on an average. I'm not talking about case generalistic. Yeah, that's a generalistic view. Right. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और जब भी आपके हस्बैंड ने जॉब चेंज लिया है और उसके साथ साथ नॉट ओनली यू हैव सैक्रिफाइस करियर बट न्यू लोकेशन, न्यू स्कूलिंग, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू टाउनशिप, एवरीथिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है व्हेन यू आर मूविंग विथ योर हस्बैंड। तो आप उसके नई जगह जाके आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो नया, वन थिंग, आप सैलरी में कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप सीटीसी में कॉम्प्रोमाइज करोगे, सब चीज में करोगे, बट उसके साथ साथ आपके हस्बैंड को किसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा है। उसको जंप मिला है, उसको प्रमोशन मिला है, और जो ये पर्सनल फ्रंट की भी जो हेडेक है वो हस्बैंड की नहीं है, आपकी है। नए स्कूल में बच्चों को एडजस्ट कराना, नई लोकेलिटी में खुद एडजस्ट होना, ग्रोसरी शॉप कहाँ है, नियरेस्ट सब्जी की दुकान कहाँ है, नई मेज सेट करना। तो ये जो चैलेंजेस है मीतू, ये कहते हैं ना कि टैंजिबल एंड इनटेंजिबल, टैंजिबल जिन चीजों को हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिन्हें नहीं छू सकते। तो डेजिग्नेशन और सैलरी आपकी दिखती है, बट ये इनटेंजिबल हेडेक्स ये सिर्फ लेडी को ही दिखते हैं, फीमेल प्रोफेशनल को दिखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। एंड आई थिंक नॉट ऑलवेज बट 50% ऑफ द टाइम ये भी मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी देखा दैट व्हेन अ वुमन इज कमिंग बैक टू द वर्कफोर्स शी हैज मेनी हेजिटेशंस ऑफ हर ओन। अपने कुछ उनके खुद के ही सेल्फ टॉक ऐसी होती है दैट दे आर नॉट श्योर, they are not confident of what they should ask. They get a little laid back on the negotiation part when it comes to salary. या फिर उनके साथ ये भी होगा कि सैलरी एंड ऑल तो हैव ऑलरेडी नेगोशिएटेड। आप देखो टेक्नोलॉजिकली भी एडवांसमेंट हो गया है, अभी डिजिटलाइजेशन का जमाना है, स्पेशली पोस्ट कोविड। तो अगर आपने उस ब्रेक में अपने फील्ड में कुछ पढ़ाई नहीं की है, कुछ कोर्स नहीं किया है टेक्नोलॉजी बेस्ड, मैं अगर ह्यूमन रिसोर्स की हूँ तो आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आज नहीं सालों से है, एसएपी अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है तो एसएपी में 6.5 वर्जन चल रहा है उसका। तो अगर मैंने एचआर में भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, आई डोंट से कंपनी विल गो आस्क की डिग्री दिखाओ एसएपी की, राइट, बट अगर आप इंटरव्यू में बोल पा रहे हो, बता पा रहे हो, अनअकैडमी वगैरह के कोर्सेज हैं जो कि बहुत नॉमिनल होते हैं, 500, 1000, 1500 रुपीज। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ कम बैक, तो आपका जो भी क्षेत्र है उसमें जो गैप फिलिंग है ना वो करते चलो। अगर 6 महीने बाद भी आपने ज्वाइन करना है, अपने क्षेत्र में जो कोर स्ट्रेंथ है, कोर एरिया है, डोमेन एरिया है, उसका कोई कोर्स, कोई सर्टिफिकेशन, लिंक्डइन पे पढ़ो, उसके बारे में न्यूज़लेटर्स पढ़ो, अपनी नॉलेज अपग्रेडेड रखो। और हमेशा मीतू आपका जो लर्निंग कर्व है राजीव जी, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। कभी भी आपकी जो सीखने की इच्छा शक्ति है वो खत्म नहीं होनी चाहिए बुढ़ापे तक, क्योंकि वही उनको जिंदा दिल है। राइट, करेक्ट। सो बेसिकली वही चीज आ जाती है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको अपनी वेलबींग पे ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ दैट यू नीड नॉट टू फील लेस कॉन्फिडेंट, you need to be very much abreast with what's happening in the industry. आप अगर चाहो तो
थोड़ा बहुत आप अपने आप के आगे पीछे, आई थिंक मेंटरशिप आल्सो हेल्प्स अ लॉट व्हेन अ वुमन वांट्स टू लॉट। कम बैक. जैसे कि लिंक्डइन में आपने नेटवर्क बना लिया, यू आर टॉकिंग टू पीपल ऑफ द इंडस्ट्री एंड ऑल, सो दैट आप वुड आल्सो रिवाइव मेक. करो ना, आपके आपके जो एक्स कोलीग्स हैं, एक्स बॉसेस हैं, एक्स मेंटर्स कोचेस रहे हैं, रिवाइव द रिलेशनशिप, उनसे बातचीत करो कि सर मैं 1 साल में ट्राई कर रही हूँ, मैं मुझे क्या करना चाहिए। वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, राइट? आपको क्या पता, वो अपनी ही इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने आपका काम देखा है। ओ माय गॉड, मीतू तो इतना अच्छा काम करती थी यार, आ जाओ मीतू 1 साल में ये करो एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई। नहीं तो तुम्हें कहीं रेकमेंड करेंगे वो कि सर ठीक है आप तो गुजरात शिफ्ट हो गए, मेरे को तो दिल्ली में चाहिए। ओके फाइन, दे हैव अ नेटवर्क, राइट? दिल्ली में आपके लिए यस, कुछ अपॉर्चुनिटी। इंटरव्यू क्रैक करना इज योर कैपेबिलिटी, यू शुडंट हैव अ जैक फॉर दैट, बट वहां तक पहुंचाने के लिए भी माध्यम कई बार चाहिए होता है। और जैसे कहते हैं ना कि हम लोग एक मैंने आयन लेडी का कोर्स किया था, उसमें हम बोलते हैं कि शेमलेस पिच, बेशरम यस, बन के मांगना, वो झिझक को जो है ना खत्म करना पड़ता है, शेमलेस पिचिंग बोलते हैं उसको। वो झिझक एक 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 क्षण की होती है, बट किसी से मांगने में शर्म आती है कि सर मुझे रेकमेंड कर दीजिए या मेरे बारे में बोल दीजिए, मेरा बायोडेटा फॉरवर्ड कर दीजिए। तो वो एक क्षण की बात है, एक बार कर लिया ना फिर आप हमेशा कर सकते हैं। तो इसलिए अपने कॉन्टैक्ट रिवाइज करिए, अपने लिंक्डइन पे सुपर डुपर एक्टिव होइए। अभी तो naukri.com से ज्यादा लिंक्डइन जो है वो जॉब मिल रहा है लोगों को। सही. ये भी है, LinkedIn is actually becoming a very good platform for the professionals to connect and to hire from there as well. Also, I think you should put on a little bit of spotlight on different organizations also, Barkha. Those are bringing in women back with their internship programs, or they are bringing back women with rejoining the same organizations and all. And also I there are a few platforms like Job for Her, WBW, Women Back to Right. Work, that is full form. So these kind See, of there are platforms are also trying to help a lot. n number of platforms who are doing it. और क्या होगा ना नीतू, आप एक बार फेसबुक पे इंटरेस्ट शो कर दो, यू विल बी फ्लडेड विद दीज फ्लायर्स एंड एड्स। मतलब आप Hmm. मुझे 2-3 बता रहे हो, 30-40 आ जाएंगे, एंड देन आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2 इज जैसे फ्लिपकार्ट है, उनका एक स्कीम चल रहा है, फ्लाई अगेन। तो नहीं, Yeah. दैट इज एयरबस, एयरबस का है फ्लाई अगेन। तो फ्लिपकार्ट का भी एक स्कीम है, रिटेनर, व्हाट दे कॉल इट, रिटेनरशिप, विमेन रिटेनरशिप, रिटर्नरशिप, RETURN, मतलब विमेन हु वांट टू रिटर्न टू फ्लिपकार्ट। तो Oh, उनको 6 months के इंटर्नशिप पे दे आर कीपिंग, इन 6 months they are paying them the internship stipend, and a very good stipend which is equivalent to salary. It is not salary, PF gratuity नहीं कटेगा क्योंकि वो stipend है, बट 6 महीने का इंटर्नशिप दे रहे हैं उस वुमेन को एक्सट्रीमली गुड डोमेन्स दे रहे हैं, उस वुमेन को एक्सट्रीमली चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दे रहे हैं, और 6 महीने के बाद उसकी परफॉर्मेंस, उसके प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करके फ्लिपकार्ट में जॉब दे रहे हैं ऑन रोल्स। किसी तरह का एक analyzing क्लास, performance के उनका. दे आर डूइंग 360-degree एनालिसिस। मतलब जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो, प्लस उसके साथ वाले पीयर्स और उसके नीचे वाले, उन्होंने सबने फीडबैक किया उस लेडी की परफॉर्मेंस पे, प्लस उसके प्रोजेक्ट ने क्या कैसा परफॉर्म किया, उससे कंपनी को क्या एडवांटेज हुआ, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, सबको उनका पूरा सिस्टमैटिक एनालिसिस प्रोसेस है, फीडबैक प्रोसेस है उस लेडी की परफॉर्मेंस पे 6 months, एंड देन दे टेक हर। इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट ऐसा ही एक प्लान जो है एयरबस में था, एयरबस की आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उन्होंने उसके साथ साथ PIP भी रखा था, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। मतलब वो Okay, लेडी self घर की development का. दिक्कतों की वजह से, बच्चा छोटा है तो प्रोजेक्ट डिले कर गया या उतना अप टू द मार्क नहीं परफॉर्म की, दे हैड सेट स्टैंडर्ड्स व्हेन दिस प्रोजेक्ट वाज गिवन,
बट व्हेन शी कुडंट डू इट तो उसको पीआईपी में डाला, अगेन 3 months 1 quarter दिया कि ओके, एंड देन शी कुड डू इट. तो अभी क्या हुआ है, एंड सिमिलर उन्नति करके टीबीएस कंपनी ने अपना रीलॉन्चिंग विमेन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है. उसको उन्नति नाम दिया है उन्होंने हिंदी में, टीवीएस Yeah. कंपनी. तो अभी क्या हुआ है मीतू और राजीव जी, कि फोक्स रियलाइज कि टफ टाइम तो सबके लिए आया था, बट फीमेल्स के लिए ज्यादा टफ था, फीमेल प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम काम भी करती थी लैपटॉप पे, मेड्स नहीं थी, बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी, घर में एल्डर्स थे, सीनियर सिटीजन थे. तो एक्चुअल कोरोना वॉरियर्स ये फीमेल्स थे, क्योंकि ये प्रोफेशनल फ्रंट पे भी लड़ी हैं, बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, सीनियर सिटीजन, ग्रोसरी लाना, मतलब हर फ्रंट पे. तो they are mentally, emotionally, physically I'll not say that strong, but yes, mentally and emotionally now organizations have realized, accepted and coming up with plans to attract men. अगर तुम्हें मेल का सपोर्ट नहीं है पीछे से, हम स्टैंड कर रहे हैं, यू गो अहेड इन. Yeah, actually, during and post-COVID, many organizations have also realized this कि 50% of the workforce is women, and if they have gotten a back seat, उनको किसी वजह से उन्होंने कभी कंपनी ने निकाला because male have been prioritized कि they should have their earning capacity, females probably they would have somebody to back themselves or something like that. तो अब employers को भी ये बात समझ में आ गई है कि जो कोर बोलना चाहिए ना, कोर कॉम्पिटेंसी जो एक वुमेन में है, शी हैज एम्पैथी, शी हैज मल्टीटास्किंग, शी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ पेशेंस, लर्निंग एंड हैंडलिंग ऑल द सिचुएशंस ऑन द गो. और इसीलिए आई रिसेंटली हैड गॉन थ्रू वन ऑफ द readings also where Google emphasizes on that even if a woman is willing to come back to work after 10 years of gap and she's performed well previously और इंटरव्यू जब उनका लिया जा रहा है, सो पहला जो इंस्टिंक्ट है टीम लीड का या मैनेजर्स फॉर हायरिंग का है, दैट इज टू एनालाइज एन इंडिविजुअल ऑन सर्टन बिहेवियरल एंड mental strength capabilities of an individual, especially in the field where rather in for women, and accordingly they get the confidence ki theek hai, if we give her certain task to perform, then she might perform it better than a male competitor. And no comparisons on this state, is just that there are certain things ki jahan par aap situationally चीजों को जल्दी explore कर पाते हो because of your life experiences. So that is a very few things are me too inbuilt. Like हम जब वो novel we had read ना, men are from Mars and women are from Venus. तो जो facts है वो facts हैं. Women are good at multitasking. मैं रात में हैंड्स फ्री लगा के पराठा भी बेल लेती हूँ और मोबाइल में एक सेशन भी संदीप माहेश्वरी का देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ. मतलब और बीच बीच में बेटी को इंस्ट्रक्शन भी देती रहती हूँ, वॉशिंग मशीन का लोड लगा दो. मतलब तो my husband cannot do it because men are not, भगवान ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया है. तो उसको हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले और उस मुद्दे के ऊपर लड़ना बंद कर दे, उतना जल्दी बेहतर है. मतलब ये उनके लिए जो अभी नए नए शादी में घुसे हैं. मतलब मैं 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इन्हीं मुद्दों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं. तो मल्टीटास्किंग हम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकते, राइट. जब मैं इनको गुस्सा आता है, उनको कूलिंग टाइम चाहिए होता है, राइट. उनको क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने बोला, मत करो, उनको जाने दो साइड में. यू नो, उनको शायद एक रात लगे, 2 दिन लगे या शायद 1 घंटा लगे, वो वापस आएंगे, आपको सब शेयर भी करेंगे. पर आप पोक कर करके उनको पूछोगे ना, तो दे विल गेट मोर एंग्री, मोर एग्रीवेटेड. अच्छा, उल्टा हमारे साथ है, अगर हमसे नहीं पूछा गया, हम दिन भर की बड़बड़ जब तक निकाल नहीं लेंगे, हमें शांति नहीं मिलती है. वो हमारा विमेंस का स्टाइल. तो ये ईश्वर ने जो बनाया है, ईश्वर की कृति है, पुरुष और महिला, वो वैसे ही रहनी चाहिए. और आज भी मैं ये मानती हूँ, इस फोरम पे मैं कहना चाहती हूँ कि आज भी भारतीय समाज में
पुरुष प्रधान समाज है उसको आप एक्सेप्ट करें। घर में आपका सैलरी कितना भी ज्यादा हो आपके हस्बैंड से, बट आपके सास ससुर रिश्तेदार उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट, उसको एंजॉय करेंगे आपकी ज्यादा सैलरी को, बट खुश नहीं होंगे, अभिमान से नहीं बताएंगे कि बहू की कमाई बेटे से ज्यादा है। तो उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो बेहतर है। बट हाँ, वो हस्बैंड और वाइफ के बीच कभी भी उस पैसे को लेके जो है तकरार नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बड़ा करना आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दोनों जो कमा रहे हैं उससे एसेट्स बनाने हैं, वो आपके ही काम आएंगे। गवर्नमेंट जॉब होती नहीं है आजकल, पेंशन मिलेगी नहीं। जो एसेट्स बनाएंगे, दुकान खरीद ली या फ्लैट का रेंट आएगा, वो सब आपको डिसाइड करना है, राइट। उसमें बहुत ज्यादा फैमिली का इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनके अपने सोचने समझने के तरीके थे मोस्टली, और अब समय भी बहुत बदल गया। और बॉयज भी, हस्बैंड्स भी, अभी नहीं 20 साल पहले से भी हैड बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। मतलब डायपर चेंज करने से लेके, अगर वाइफ जॉब से आई है और कपड़े सूखे नहीं है तो कपड़े भी सुखा देते हैं कि भाई तुम खाना लगाओ, मैं कपड़े सुखाता हूँ। तो वो समझते हैं बीवी की कमाई की इम्पोर्टेंस, कि एक की कमाई से घर चले, एक की कमाई से ईएमआई भरे जाए। अभी लोन का जमाना है, लोन पे घर चलते। तो जितना आपसी सामंजस्य से आप चलाएंगे गृहस्थी, तो प्रोफेशनल चैलेंजेस आप तभी बीट कर पाओगे एज ए लेडी, जब प्रोफेशनल पर्सनल चैलेंजेस आप बीट कर। घर में लड़ लड़के हस्बैंड और सास ससुर से आप झंडे नहीं गाड़ सकते। Oh, it will then go into mental stress. Yeah, whatever you are talking comes under that categorization only कि एक well-being की बहुत ज़रूरत है. Mental well-being is very much in focus. और जब आप चाहे you are making a comeback, the company needs to also emphasize on these things, that yes, as a company, as an organization, as a team, they understand that and they try to be cooperative and inclusive all those situations of the person who's coming back to Now, work. मीतू, अभी होलिस्टिक डेवलपमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है। अभी नहीं, कोविड के पहले से काफी टाइम से शुरू हो गई थी। अब पोस्ट कोविड organizations have realized, and even people have realized the value of health, number one, family number two, and then job. क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये जो एक स्टेटमेंट था ना, ये बहुत स्ट्रांगली आज भी है और आगे भी रहने वाला। तो आजकल जी ऑर्गेनाइजेशंस में योगा सेंटर्स होते हैं, आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में जिम होते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देयर एम्प्लॉइज, कि भाई आओ, सुबह थोड़ा जल्दी आ जाओ, योगा करो और फिर डेस्क पे जाओ अपने काम करो। योगा नहीं पसंद है, जिम करो। एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट क्लास का वो जिम बनाते हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दिस ऑल्सो कम्स अंडर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड ओडी इनिशिएटिव, कि सैलरी के ऊपर ये पर्क्स एंड बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय। एज अ फीमेल, अगर आप जॉब कर रहे हो, अभी तो हाइब्रिड मॉडल भी हो गए, 2 दिन ऑफिस 3 दिन घर, या वर्क फ्रॉम होम, या अभी तो ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देयर हैज टू बी अ टाइम टेबल सेट फॉर द फैमिली। नाउ व्हेन आई से टाइम टेबल, उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, एवरीथिंग नीड्स टू हैव अ टाइम। रात में आप खुद 2 बजे तक फेसबुक करोगे, सोशल मीडिया पे रहोगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू स्लीप एट 9 इन द नाइट? हम लेडीज क्या करती है ना, रात में 10 बजे किचन वाइंड ऑफ करने के बाद सोशल मीडिया स्टार्ट करती है, फीमेल, वेदर वर्किंग और नॉट वर्किंग, राइट। और मैं खुद 3 साल पहले यही करती थी, बट आई हैव स्टॉप डूइंग दैट। तो आपको एक घर में माहौल बनाना पड़ेगा, टाइम से सोने का, टाइम से उठने का। अंधेरा करके लाइट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल लगा दो, फॉर यू, योर हस्बैंड, फॉर योर किड्स। टाइम से सोएंगे तो टाइम से उठेंगे, उठे एक लाइट एक्सरसाइज, वीकेंड्स पे यू कैन प्लान विद द फैमिली, मे बी अ स्मॉल वॉक कैंपस में या गार्डन में। डेली में बच्चों को थोड़ा रनिंग, थोड़ा एक्सरसाइज, उनके जो ब्रेन है आपके बच्चों का और आपका खुद का, फ्रेश ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि क्या होता है कि स्क्रीन टाइम से हमारी आंखें और दिमाग थकता है। मोबाइल छोड़ा, टैब उठाया, टैब छोड़ा, लैपटॉप उठाया, लैपटॉप छोड़ा, टीवी उठाया।
तो एंटरटेनमेंट भी आप स्क्रीन पे कर रहे हो और एजुकेशन और जॉब भी स्क्रीन पे कर रहे हो, तो फ्रेश ऑक्सीजन ब्रेन को कैसे मिलेगा? तो ऑक्सी रिच फूड, जो अलसी आती है, अलसी आप मतलब ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बट जो भी ये सुन रहे हैं वो खुद गूगल करें, वो खुद अपनी फैमिली, अपनी गुजराती है तो उनका एक टिपिकल खाने का स्टाइल होगा, मराठी है तो अपना है, पर उसमें ऑक्सी रिच फूड कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। चीट डे भी रखो, संडेज को आप पिज्जा बर्गर चिकन मतलब मटन चिकन सब खाओ, चीट डे रखो, बट है दिन हेल्दी, फ्रूट खाओ, दवाइयाँ कम से कम खाओ, यू नो। अपनी पोस्ट 40 वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि आपकी हेल्थ वेल्थ है। और आप जो लेडी है ना, एक दिन बैठ जाती है, आप देखो पूरा घर सर पे आ जाता है, कपड़े का ढेर लग गया, आई मीन मेस, अटर मेस क्रिएट हो जाता है। तो आप अगर प्रोफेशनल विमेन हो, आप होम मेकर हो, आप जो भी हो, सबका ध्यान रखते हो, बट आप डस्टबिन नहीं हो कि जो खाना बचा मैं खा लेती। आप खिड़की में एक पक्षियों के लिए प्लेट रखो ना, उसमें डालो, पक्षी खाएंगे। गर्मी आ रही है, पक्षियों के लिए पानी रखिए। थोड़ा अपनी सैलरी से दान पुण्य करना, हिडन, किसी को मत बताइए, बट होलिस्टिक व्हेन आई टॉक एवरीथिंग। थोड़ा समाज के लिए आज अभी तक जो अर्न किया थोड़ा सा रिटर्न करना। तो ये नहीं है कि चलो कुछ भी बच रहा है तो चलो मैं ही खा लेती, तो उससे अननेसेसरी वेट गेन होगा। तो अपनी हेल्थ, we'll have to take this session, rather एक और सेशन प्लान करते हैं जिसमें we can always talk about all these well-being for women also, because this is also a very important topic. हमारे आई डू, काम से yes, I खुद do. I have a women empowerment group. I started from 8th March 2018 with 22 women, and now we are 140 women across globe. तो हमारा छोटा सा एक संस्था है, हमारा कोई फेसबुक पेज नहीं है, हम कुछ एडवर्टाइज नहीं करते, बट मैं विमेन एम्पावरमेंट में काफी काम करती हूँ चुपचाप। तो अगर कोई सेशन आप लेने को बोलोगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू। डेफिनेटली वी विल डू दैट ऑल्सो, बिकॉज वो भी एक आफ्टर सर्टन एज और सर्टन अचीवमेंट्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, आप अपने आप को कैलिब्रेट करने लगते हो अपने पर्सनल, बोलना चाहिए ना कि टू मेक इट मोर contributory kind of a life for yourself, and that generally happens for a person mid 40s 50s में आके we start thinking about that also. So There is आज जो हम no लोगों का there is no end to materialistic thing. एक 1 BHK से 2 BHK हो जाए, 2 से 4 हो जाए, कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा ना। करेक्ट, राइट। सही। So आज के takeaways, बरखा, how would you just give them a jotted kind of एक summary कैसे बनाएंगे that women who want to come back to the workforce, what they are supposed to do and what the company has to take care of for these kind of employees who are coming back? Just a capsule. Yes. Okay. So one thing is, as I said, challenges will be there definitely. One thing is you need not lose your individuality and identity. You should own your gap. That is more important. Be realistic about the gap, why it happened. Don't make stories about it. Number 3, grow your network. Be super duper active on LinkedIn. सपोज आई जस्ट गिव वन एग्जाम्पल, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग है, कोई बढ़िया पोस्ट रीड किया, 20,000 ने उसको लाइक किया, उसमें 4 लाइन अपनी ऐड करके रीपोस्ट कर दो। सो ट्राई टू बी मोर visible on LinkedIn, right? Next is touch base with your ex bosses, ex mentor, ex coaches, and seek their guidance. वो आपको गाइड भी करेंगे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। गैप के लिए एन अकेडमी से जैसे कुछ कोर्सेज हो आपकी फील्ड रिलेटेड, आपकी कोर स्ट्रेंथ रिलेटेड, तो डू सम सर्टिफिकेशन, डू सम कोर्सेज उस गैप को फिल करने के लिए। अपना सीवी हर जॉब के लिए आप जो है वो जॉब स्पेसिफिक वर्ड पिक करें जेडी में से, जॉब डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आजकल एटीएस यूज होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सीवी की छटनी होती है, सीवी के डाल दिया जाता है और वही सीवी छट जाता है। तो आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें से वर्ड्स निकाल के अपने सीवी में डालें, एटलीस्ट सीवी तो सिलेक्ट हो आपका, इंटरव्यू में आप प्रूव कर। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप।
Be cheerful, be happy, be positive. If not today, tomorrow, it will be done. It can be done. Very nice. A very nice encapsulation of the session today. Thank you so much, Barka, for being on board with us. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस सेशन से काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी. And now I'll Thank just you hand so over the session to, yeah, sure. I'll hand over the session to Rajiv ji. All yours, sir. मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मीतू जी को, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है ऐसा जिसको सारे लोग सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुन, क्योंकि ये जो फैमिली लाइफ का जो एक स्ट्रक्चर बना के जो है बरखा जी ने दिया है, ये वाकई में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ये इन सब पे तो काफी सारे सेशंस हुए, वो एक लिमिटेड स्कोप है उसका. लेकिन ये डे टू डे लाइफ के लिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए. इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं आपने, क्योंकि ये केवल एचआर फील्ड के लिए नहीं है, केवल कॉर्पोरेट के लिए नहीं है, ये सारे उनके लिए भी है जो वर्किंग में है, जो नॉन वर्किंग में है, और जो न्यूली मैरिड कपल है उनके लिए तो आगे उनको कैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करेंगे, कॉर्पोरेट में कैसे काम करेंगे, इसके लिए तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी. लेकिन जो आज बताया गया है इसके लिए ट्रेनिंग बहुत कम ही मिलेगी. जिन चीजों को इग्नोर किया गया था अभी तक, उस पे बात हुई है. मैं बहुत ही थैंक्स इसके लिए कहना चाहूंगा बीतू जी को भी और बरखा जी को भी, कि उन्होंने इतने डिटेल्स में सारी चीजें बताई हैं. और अपने को जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने कहा, ये इसके लिए सही बात है, कोई एज नहीं है. कि जैसे 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 आप सीखते जाते हैं वैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत बनते जाते हैं. क्योंकि जॉब्स लोगों की जाती तब है जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनको कभी नहीं फायर किया जाता है जो उनकी जरूरत होते हैं, जो उनके स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं. कि उनके हटने से स्ट्रक्चर पे कहीं कुछ फर्क आना है, वो कभी भी नहीं जाते हैं, चाहे जितना रिसेशन आ जाए. तो इसके लिए करना क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत बनिए. उसके लिए यही सीधा सा तरीका है कि आपको एक तो स्किल आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए, फैमिली लाइफ और वर्किंग लाइफ, ये जो बैलेंस है इसको कैसे मेंटेन करें. मुझे लगता है इससे बेस्ट सेशन कोई हो ही नहीं सकता है. आज इसको मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि इसको आप रिवाइंड करके कई बार इन चीजों को सुने, समझें और उसको अप्लाई करें. बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी आपका, नीतू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं चाहूंगा कि इस टाइप के सेशन और भी होते रहें जिसमें लोगों को बहुत ही प्रैक्टिकल जो इंफॉर्मेशन है वो देते रहे. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बस लास्ट एक लाइन बोलूंगी कि कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी जिससे हारी है. थैंक यू सो मच. Very nice. Very nice. Very nice. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mitu. Bye. Thank you. Thanks, Rajiv. Bye.